क्योंकि उसके फेर में पड़ गए अपना. All right, I will just. So we will start with this topic. I don't know if तुमने सुना नहीं सुना. This topic is the topic of Henne-Smith equation. Okay, so let's हमको से discuss दोबारा the बोला ना. Henne-Smith equation. Okay, that's a एन स्मिथ. yes. पढ़ाया तुम्हें? एनसीईआरटी में नहीं है कहीं भी इसका ना. Okay, नहीं पढ़ा है. okay, no problem. Let's go and study this. Okay. बट सर ये वैसे स्कूल के सिलेबस में नहीं है. हाँ फिर भी डिटेलिंग बाद में कर लेंगे बट हेने स्मिथ इज समथिंग. ओके, स्मिथ equation. So what is the idea is to calculate the ionic character. Okay, so why is it studied? Because you want to study the ionic character. So if you're given so let's focus on bond strength and तो अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है बॉन्डेड एटम्स के बीच में तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है. ओके, सो विच मीन्स यू आर सीइंग द bonded atoms, you're seeing the bonded atoms, and what you're seeing is what is the difference between the electronegativity between the members of that covalent bond. If the difference is going to increase or is quite substantial, then what we say is that the bond energy also goes up. So if the bond energy goes up, so for example if you pick up any example, जैसे जैसे आपका bond energy so let me use a word, bond energy of the covalent bond right. So link is between the bond strength and the bond energy essentially, and the origin is the difference of electronegativity between the. Okay, so agar electronegativity between the members of a covalent bond increases, right, so then the bond energy of the covalent bond also increases. बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ. Yes, ठीक है. ये एक तो ये था. दूसरा क्या इसके अंदर था, ये मतलब हम मैथ्स नहीं कर रहे इसकी, इट्स एन इक्वेशन आफ्टर ऑल, राइट. बट व्हाट डिड इट कंसिडर वाज दिस वाज वन रिलेशनशिप between the difference in electronegativity of the participating members of the covalent bond. Higher the electronegativity difference, higher the electronegativity difference, okay, more was the energy of the bonded atoms. What the hell is this? All right. The second thing they took under consideration was the metallic and non-metallic properties. I'll just show you something, but broadly I'm just giving you an overview. There was an equation which was used to determine the ionic character, and they calculated some values based on the electronegativity difference, and the second thing was the metallic and non-metallic properties of the participating elements. Okay, and तो ये वाला तो हमें वैसे भी पता है, metallic character decreases as the electronegativity of the element increases. electronegativity बढ़ती जाएगी तो metallic character बहुत strong होता जाएगा. और if you move from left to right, for example, left to right, पीरियड में. हाँ तो पता ही है तुम्हें, electronegativity of the elements increases. यस सर. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी सो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा. राइट पे गैसेस ही होती हैं जनरली पीरियड में. सो दे कैन आस्क यू व्हाट, ये पहले ही हमें पता है एक्चुअली,
द मेटेलिक प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटेलिक किस साइड क्या होता है, नीचे जाओगे तो तो इलेक्ट्रिविटी आपकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो मेटालिक कैरेक्टर कम होएगा। या no, if you go ठीक। down the group for example, yeah. डाउन द So ग्रुप तो if you, बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप तो बढ़ेगा। no, no, think about it. If you go down the group, what happens to electronegativity? इट डिक्रीजेस। It decreases and therefore the metallic character कैरेक्टर increases. इंक्रीजेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस। सही है। तो मैं ये पढ़ाने में बहुत सुविधा हो जाती है, इसलिए ये बुद्धिमान आदमी को, बुद्धिमान बुद्धिमान को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि पढ़ ले, 90% टाइम उसी में निकल जाता है। ओके, सो दे गेव सम इक्वेशन, ओके, एंड let's focus on that equation. Okay, I will just tell you that equation. Hopefully I'll be able to get it. We are not, so it helps you determine finally how much percentage character is there, okay, of the whatever bond that gets created. So, and it's based on the difference, and we have not done detailing of the electronegativity also. There is a scale available, Pauling scale, and 3 more scales available. So we have not done that, but nonetheless, बस ये broadly इतना भी idea भी है कि थोड़ा there is an डिटेल में कम equation जाते that हैं is चीजें। based on the difference in electronegativity, right? That is also good enough. Okay. And what else can we? They have not taught you, right, about this? नो नो नो, नॉट एट ऑल। Okay. So सब बस हमारे दो ही टॉपिक बचे, एक तो पेरियोडिसिटी ऑफ बैलेंस स्टेट्स और एनामलस yes, प्रॉपर्टीज ऑफ yes. सेकंड Let पीरियड। I'm sharing something, and yeah. So yeah, this is also very. One minute. So I just want to show you something. Ionic character, right? Ionic character. So we have an image available, that also is good enough. We can use that image also. Yes. So I just wanted to show you one example. प्रॉब्लम ये है कि हमने क्योंकि पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल नहीं करा, इसलिए सडन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द, so we're trying to determine the ionic character. So for example, you have creation of an element, sorry, a compound, and you want to find out what is the ionic character of that. So what you do is use, for example, hydrogen fluoride, okay? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर आप निकालोगे तो देयर इज अ टेबल अवेलेबल which tells you what is the electronegativity of an individual element. I'm सर sorry. एनसीईआरटी में भी है। Scale. नहीं, टेबल है, लाइक जैसे कि पीरियड 2 में बता रखा है, पीरियड 3 Okay. में, Okay. और एक ग्रुप में भी बता रखा है। Okay. And it's a relative पॉलिंग value. स्केल, पॉलिंग स्केल। अच्छा दिया हुआ है. हाँ Okay. जी। Okay. कैलकुलेशन तो नहीं दी हुई है. नहीं, कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Okay. हाँ वो हमें करनी, we'll have to do, but anyway. So electronegativity is between, okay, electronegativity scale Pauling. So to do these numericals, generally you would first go to the Pauling electronegativity scale, which is not an absolute value but more of the a scale only, which gives you relative. So you may be the most electronegative with respect to someone, but if some other element comes, then you're comparatively less. तो क्योंकि वो scale है ऊपर और नीचे का, right? So therefore it's not an absolute value of electronegativity. It's always with respect to whom. जो ऊपर वाले हैं या नीचे वाले. So for example, in the Pauling scale, the most electronegative is fluorine. Okay, and francium, however, is the least electronegative.
So electronegativity of fluorine is 4 and that of francium is zero point 0.7. Okay. So जो भी participating members हैं find their difference of the electronegativity, and then once you find the difference divided by the, we're talking about the equation which I'm telling you, okay, the Hannah-Smith equation. क्योंकि ये हमारे कोर्स में है नहीं, फिर भी पता हो तो सही रहता है. यस. वो स्लेटर रूल थोड़ा ज्यादा जरूरी लगा था. ये तो ऐसी कर्सरी भी पता हो तो कोई इतना अर्जेंट नहीं है सीखना है. वो Hannah मतलब Smith, कहते हैं nothing great about न्यूक्लियर it. चार्ज के बारे में पढ़ने के लिए काफी काफी थोड़ा हेल्पफुल था प्लॉटर. काफी उससे स्क्रीनिंग, क्योंकि if you understand screening pretty well, then it is. But there is a formula available which is based on the electronegativity difference, and if you apply the values of electronegativity difference, then you can find the percentage ionic character of that molecule. You know what is the, how much of ionic it is, which means, and how much less of a covalent it is. So you can find. सर हाँ जी. तो जैसे लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम बढ़ती है हाँ. तो क्या रिएक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है क्या? रिएक्टिविटी क्या होती है यार? मतलब कि वो कितना रिएक्टिव रिएक्टिव मतलब एज इन कैसे रिएक्ट करे, जैसे सोडियम का रिएक्टिव मेटल है. हाँ, तो इट इज रिएक्टिव. या इट्स इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन. तो No, think about electronegativity first and say, how does electronegativity impact ionization energy, right? Finally, you're talking about removal of electron or acceptance of electron. If your electronegativity, huh, एक्सेप्टेंस ऑफ so first think in terms of ionization energy for sodium. How easy it is to ionize sodium to sodium plus. हाँ जी. How easy it is. यस सर. It is easy, right? हाँ जी. You got your answer, अच्छा ठीक है. right? यस सर. The more electronegative you are, right? For example, in a group you are the highest. What happens to electronegativity in a group, इन अ ग्रुप सर इट डिक्रीजेस. right? Which means, what are you referring to when electronegativity decreases? What are you referring to? Ionization energy. And ionization enthalpy is increasing. So it gets harder to remove it. Removal of electron, Yes. right? Ionization enthalpy decreases So it is reversed then. across a group, Yes, down the group, sir. down the group. So don't think in terms of electronegativity. Things in terms of energy, it's easier always. Enthalpy के terms में मैं पूछ रहा था वैसे. हाँ, ठीक है. Okay, now we will study nature of oxides. Actually, why I'm not writing is because I have that pain in carpal tunnel type of pain, right? So I have this. Carpal tunnel. ये जो जगह होती है इसको carpal tunnel बोलते हैं. If you have to have steroidal injection if it doesn't. सर वो पहनो ना, कहते हैं थंब सपोर्ट जो आता है. हाँ, वो पहनना पड़ेगा मुझे. I have to. Don't have a choice. All right. So let me just do one thing. And can you see my screen? Can you see Nope. now? अब हाँ. All right. So oxides are essentially, something which have oxygen. So there are multiple types of oxides, and the idea is what happens to oxide when it is directly, made to react with water. Okay. So it can formation of an acidic
basic or amphoteric solution. ये If it 10th में forms कर an, huh? 10th में करा है ये सब। Huh. If it forms an amphoteric solution, okay. It can also form neutral also, हाँ but जी, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। correct. So amphoteric, though they can ask you give two examples of acidic एम्फोटेरिक oxides. एम्फोटेरिक की सर दो है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक जिंक ऑक्साइड। जिंक, यस करेक्ट, तो है। तो एक बार ये उसका दो, रिएक्शन आप करके दिखा दो HCl से, दूसरी बार उसका रिएक्शन दिखा दो दोनों आप। में ही सॉल्ट्स बन जाएंगे। हाँ, सॉल्ट एंड वाटर, ये रहा एम्फोटेरिक, ये यस। रहा। सो दे कैन आस्क यू व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन वर्बिटम केमिकल, मतलब जो लैंग्वेज ऑफ प्रॉपर यूज हो। ये और सर 10th में मैंने करा ही। अच्छा, यू नो दिस न्यूट्रल ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड, दैट्स ऑल योर कोर्स हैज, फ्रैंकली नथिंग मोर देन दैट, इससे ज़्यादा है नहीं। तो पर एनॉमलस करना था एक, और एक कौन से वाला? एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। एनॉमलस पीरियड ये हमने और कवर नहीं डायगोनल करा। रिलेशनशिप। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, कुछ नहीं होता, ओके। सो बेसिकली वो एक आगे जाके नजर आता है सेम प्रॉपर्टी, और डायगनली अगर देखें तो इट अपीयर्स डायगनल, बट इट्स इन अ सेपरेट ग्रुप ऑल टुगेदर। या होता है नॉर्मलस बिहेवियर ये वाला। आई थिंक इट्स सीन इन दिस सेकंड एंड थर्ड, आई थिंक कहीं पे। सेकंड पीरियड में। हाँ वो, बट जो डायगनल है वो डायगनल अकर्स इन अ सेपरेट ग्रुप जहाँ से रिलेशनशिप आता है। लेट मी जस्ट पेस्ट इट। बेरिलियम और किसका लिखा हुआ है इन्होंने, डायगोनल रिलेशनशिप्स इन पीरियोडिक टेबल? ये डायगोनल रिलेशनशिप एक तो कुछ लिथियम मैग्नीशियम का, ओके, बेरिलियम और सोडियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में है, फर्स्ट 20 में नजर आता है एक तो ये, ओके, एंड देन इट इज विजिबल इन पेयर्स हैं इसके, लिथियम और मैग्नीशियम का पेयर है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का पेयर है ना? और कौन सा पेयर है विच इज फेमस? Diagonal relationship. Just give me 1 second. Okay? ये देख लो. So these are the diagonal relationships you refer to. Yeah, how many times people will call you? Yes. So you can see the diagonal relationship. Lithium, magnesium. You can take some examples of the diagonal relationships. फर्स्ट 20 में ही है। Generally, you're expecting rightward and up and down, but sometimes you found these similarities in period 2 ये and period 3 coming together. ये सिर्फ ऐसे ही बनता है, ऐसे नहीं बनता मैग्नी बेरिलियम और सोडियम का क्या? डायगोनल रिलेशनशिप। नहीं नहीं, बीच में वो तो हटाना है पूरा का पूरा डी। यार कमाल है। Just give me 1 second यार, some mad guys. हाँ जी, which one are you referring to? सर अक्षत? बेरिलियम और मैग्नीशियम का। हाँ,
मैंने कोई बेरिलियम और सोडियम का नहीं बनता डायगोनल रिलेशनशिप? बेरिलियम का दिख तो नहीं रहा यार। नहीं, बेरिलियम और सोडियम का नहीं बन सकता क्या? इस तरफ नहीं, नहीं, राइट वर्ड है सारे। अच्छा। राइट वर्ड है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी बिहेवियर की। ओके, देयर इज नो डायगोनल की भी एक्सप्लेनेशन। नहीं है? नथिंग। कोई गलत भी हो सकता है फिर तो। गलत नहीं है, मतलब ये देखा जाता है, बट केमिकली यू डोंट हैव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर इट टुवर्ड्स इट। व्हाई इज द, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। हाँ, you can say that. So this type of relationship or similarities between the elements is called as a diagonal relationship. All right, let's do one thing. काम करते हैं and let's quickly, because we have to score marks finally, right? हमें इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये, let's do a small continuous quiz on this topic and see whether we can answer the questions or not. होंगे तो इसमें they will ask you. Let's run through this quickly and स्क्रीन विजिबल है, होनी चाहिए यार अब। यस सर। ऑलराइट, ionization enthalpy chart. Okay, anomalous property of second diagonal relationship. Okay, oxide already other. Okay, let's quickly go through from the reverse. नीचे से। Okay, कितने क्वेश्चन है? 40. Okay, let's start with the first one. Considering the elements oxidizing property, so this means you're able to receive electrons from others. हाँ जी सर, ठीक है। मतलब विच आर द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, Yes, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग 3.4 कौन सा पढ़े ठीक थे? है। ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज। सर हमें ये मेरे ख्याल से इंक्रीजिंग तो ऑर्डर में, क्लोरीन, क्लोरीन सबसे टॉप पे रहती है ना। नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने की डिक्रीजिंग में? करेक्ट ऑर्डर है, एक ही है सिर्फ, ग्रेटर। इफ यू लुक इनटू द चॉइसेस, व्हाट आर द चॉइसेस यू हैव? ठीक है, और है ही नहीं। डिक्रीजिंग में। सर सी होना चाहिए। ठीक है, 3.39 मेमोरी बेस्ड था, सीधा सीधा एमसी के। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर किस तरह बढ़ता है? मेटालिक करेक्टर सर, लेफ्ट साइड पे होता है, सेंटर में भी होता है। 80% ऑफ दैट पीरियोडिक टेबल इज अ मेटल। अगर हम लाइक राइट टू लेफ्ट से। तो मेटेलिक बढ़ता है, ठीक है। बीच में भी होता है। ये तो फोर्थ है, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। ये तो दे हैव इनफैक्ट, अच्छा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ये। ओके, हाँ जी। सो 14 से स्टार्ट हो जाता है ना, 14th। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ठीक। 14th हाँ जी, एक मिनट एंड सर। मूव टुवर्ड्स राइट। अगेन वेरी मेमोरी ड्रिवन क्वेश्चन, बट so is it. सर सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होना चाहिए। Of all,
I एक don't think मिनट, so. Silicon नहीं is, नहीं सिलिकॉन नहीं। I don't एक think so. Anything which is closer towards inert gases or fluorine. Fluorine is a फ्लोरीन, benchmark. फ्लोरीन फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन। फिर तो नीचे जा रहे हो ना आप। पहले सिलिकॉन से स्टार्ट हुए और राइटवर्ड चलते जाए तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर शुरू कहाँ से होता है? जो नहीं ट्रांजिशन फ्लोरीन होती है एल्यूमिनियम के बाद क्या आता है? एल्यूमिनियम के बाद सर सिलिकॉन आता है। फिर तो एल्यूमिनियम भी मेटालिक ही है और वहां से ही फिर हाँ जी। चालू हो नहीं जाता नहीं, है। एल्यूमिनियम नहीं हुआ, फिर फ्लोरीन, फिर सी होना चाहिए सर, ठीक सी है, आंसर। मेक सेंस। देखना, रिक्वायर्ड नॉट, appears to be correct. Next. So most of your paper is going to be like this. मेटालिक करेक्टर। Ulta. So if you have memory of your periodic table done in a very detailed manner, you already have answers. कोई यही यही सवाल हैं सारे. बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम Right. सर, के का सबसे ज्यादा होएगा सर, इट शुड बी डी। ठीक है. पोटेशियम, Next. फिर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, पर और बोरॉन। Okay, tell me how is electronegativity associated with metallic character? अच्छा, you have already asked me this. Okay, ठीक है. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. So basically, if you go to the NCERT diagram, which is this, right? यही वाला डायग्राम जो अभी हमने ऊपर देखे था, जो उन्होंने डायगनली ऐसे बना रखा है, ये वाला. ये वाला डायग्राम जो था, so I think ये डायग्राम इन्होंने मेटालिक बना रखा है. ये रहा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर. सो इट इज गोइंग लाइक ऐसे डायगनल बना रखा है पूरा, वन डायगनल टू अनदर. ऊपर की तरफ एटॉमिक. देखो, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ रही है। यस. ये सर हमने बता रखा है काफी। ओके. इन्होंने स्केल तो दिया पॉलिंग, बट न्यूमेरिकली कैसे निकालना है वो नहीं दिया हुआ. तो कोई बात सिलेबस नहीं भी था. थोड़ा डिलीटेड है ना, हम्म. उन्हें इनका वो स्लेटर भी दे सकते थे। यस. 3 पॉइंट कौन सा कर रहे थे हम? सर हम वो आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला कर रहे थे। ओके. सर तो ऊपर है वो। हाँ ये रहा। 3.37. 3.37. Which one of the following statement is incorrect in ये relation सी to और ए में लग रहे हैं। each successive? Okay. The greatest is experience or removal from the core noble. Oh beta. अच्छा, okay. ग्रेटेस्ट इंक्रीज एक तरह से सही भी है सर। Increase in ionization enthalpy. End of valence is marked by big jump in
End of electrons is marked by big jump in ionization enthalpy. मैं कह रहा हूँ सर ए और सी में मुझे गलत लग रहा है, ए और सी में से कोई गलत है। Removal of is incorrect. सर मेरे हिसाब से D सर is correct. सी इज इनकरेक्ट। A is also correct. सर सी इज इनकरेक्ट। End of valence electrons. What is the meaning of the statement? End of valence electrons. The end of valence electron is marked by a. What is the meaning of the word? The end of valence आई गेस सर electron. बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस शेल बोलना था हमको। कुछ ऐसे ही लग रहा है. The I don't know. What is the meaning of the word valence? एक second. Just give me 1 second. Alright, sorry about that. Yes, we can concentrate now. कोई सामान आना था हमारा यार. Alright, anyway, let's discuss this now. So, should I give you this? I will make you the. Can you see if you can share now ये क्या your कर लो? screen? You open this PDF. सर मेरे में खुलता नहीं है वो, मैंने काफी बार ट्राई करा खुलता ही नहीं है. है, अच्छा. वो फाइल नहीं डाउनलोड होती मेरे से। Okay. 1 मिनट से। I don't know which. The end of valence electrons is marked by big jump in. I think if you see the chart of ionization enthalpy, right, it says the biggest jump. I'm not too sure about the end of valence electron का क्या मतलब होता है. Okay, so this is the ये मेरे पास वो पीडीएफ तो खुल गया है। okay. 1 मिनट पे चेक कर। See if you're able to. क्वेश्चन नंबर I stop sharing and I say one person can share it at a time. Now, given you can share now. You can share now. शेयरिंग। उसमें एक जगह होती है बस शेयरिंग करनी है. नहीं नहीं वो मैं कर रहा हूँ। Okay. दिख रहा है सर? स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes. अभी नहीं आई.
You are sharing screen. आ गई. There. Yes, I can. तो दिख रहा है ना Yes, कैमरा पे? yes. Around. Go down below and ठीक है. Perfect. क्वेश्चन नंबर कौन सा है? I think it's 3.37. देख लीजिए. सर एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लिखा है. Okay. मुझे end of valence electron समझ में नहीं आया, but it appears that all the valence electrons are going out. That's which the end of valence electrons. Okay. होगा कुछ. ठीक है. Next. नेक्स्ट कौन सा सर? Next. अगला जो है ऊपर. ओके. The size of the isoelectronic species. Nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज. Yes. 3.35. Next. करते जाओ. करते जाओ सारे. करते जाओ. You can see for yourself. It's very, very. You need to understand the definition, but you should also then be able to repeat it. Which of the following factor does not affect the valence shell? Can Does it be not. nuclear mass? Can you show me the question? दिख नहीं रहा. Screen पे नहीं आ दिख रहा. रहा है. ये तो 3.35. आपको दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ हाँ आ गया. Which of the following does not affect the valence shell? Yes, correct. Mass has no n effect करेगा कितना दूर पास है. न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ क्वांटम न्यू नंबर की इलेक्ट्रॉन्स. करेक्ट यस. करता है. स्क्रीनिंग इफेक्ट का. ठीक है. करेक्ट है. न्यूक्लियर मास हैज नो मीनिंग. ओके. एक्सीलेंट. तो कुछ याद तो कर ही लिया तुमने. ओके. Which of the following elements related to the modern periodic table is incorrect? ठीक है. ए इज करेक्ट. नहीं, एक मिनट एक बार देखने दीजिए. ठीक है. यूज योर ब्रेन देन. ठीक है. आई विल नॉट कंट्रीब्यूट. कौन सा इतना वेयर आर यू स्टक? नहीं, I think 6 electrons is 6 columns. वहां से एड्रेसिंग जो होती है P में जाते हैं ना, तो P 1 2 3 4 5 6 सर मेरे हिसाब से
सी इनकरेक्ट है। इन दो वैसे Each block contains a number of columns. Okay, equal to that. No, they can occupy that subshell. Each block contains a number of columns. Two columns. No, C is wrong. इज रॉन्ग The नो block इनकरेक्ट indicates the value of the block indicates yes it does for the last D is correct. D block has 8 columns तो सी because इज it can इनकरेक्ट ना। occupy. Which one? सी मैंने सी बोला है। Why D block has 8 columns? Because पर डी ब्लॉक में भी सर 10 है। वही मैं सोच रहा हूँ why वो एक तो सी और डी में गलत है, बी और सी में। each block contains equal to the number of that occupy the subshell. 1s1 each block contains elements तो ज़्यादा होते हैं. Number of columns 1s1 that can occupy that subshell. P के अंदर you can have 6 right? हाँ P में 6 होते हैं, ये गलत है. B is wrong ना? बी। B is wrong. Should be 10. हाँ जी। कहाँ से शुरू होता है? 3 to 12. यस 3 to 10 तक। C is wrong. ठीक है? और 10 कॉलम्स है हाँ, एग्जैक्टली। correct. Next. In the modifier table, the period indicates the value of the principal quantum number. Right. Done. ठीक है, अगला 3.32. Predict the formulas of the stable binary compounds that be formed by the combination of pair of elements. बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या होता है? टेबल बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब Question number 3.32. predict the formula of a stable binary that would be found by the combination binary compounds. दो बनेंगे stable binary, magnesium और nitrogen, silicon. Which one exhibits this behavior? Element 71 and fluorine. What is element 71? Predict the formulas of predict करना है आपको formula. Okay, based on their element valency. 71 is Okay. Okay, lutetium. lithium and oxygen. So you have to predict it should be stable. So based on their external valence electrons. Oxygen के 2 minus, lithium is 1 plus. So you will create what? Lithium Li2O. हाँ जी Li2O होता है ये। प्रेडिक्ट करना है, देख लो. समथिंग कॉल्ड एज लिथियम आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि यू हैव दिस Li2O सही है। ओके, बिकॉज लिथियम की फैक्ट्री लग रही है गुड़गांव में. सही में टुवर्ड्स मुंबई एक्सप्रेस पे सोना सोना रोड हमारे घर के पास से तो जाता है वो फ्लाईओवर ऊपर. में घर के पास से मुझे याद नहीं। मुझे तो जानी पड़ा. ओके, नो प्रॉब्लम. एल्यूमिनियम एंड आयोडीन. एल्यूमिनियम एंड आयोडीन हो गया. सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन तो बिल्कुल नहीं होगा. फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन. मैग्नीशियम का 2 प्लस होता है ना. हाँ जी सर 2 प्लस होता है उसका आयोडीन का I2 और MgI. नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम आयोडाइड बन जाएगा MgI. नहीं सर मैग्नीशियम और नाइट्रोजन MgI2 सॉरी. नहीं सर बैलेंस नहीं होगा. मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का है। ओह सॉरी, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन है. ओके, नाइट्रोजन magnesium is 2 plus again.
So Mg3N2. G3N2. Aluminium. I'm seeing the external valence electron and then deciding. This is bad pathetic questioning then. Sir, aluminium iodide. खाली ALI. C का. 3. Okay. C का है ALI. 3. Iodine is -1. Just write cross na valency and iodide. Al3 plus and ठीक है. What Silicon is और silicon and oxygen? सर it would be SiO. अच्छा देख लो सर. देखो जरा. सिलिकॉन ऑक्साइड होगा फिर वो. सिलिकॉन मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग. SiO2. ओके. सिलिका. ओके. Silica. It's silica. Okay. कोवलेंट बॉन्डिंग है लेकिन ठीक है. Aluminium iodide. AI3. I माइनस है ना, वो 3 प्लस है तो 3 चाहिए उसको. ठीक है. नेक्स्ट. Phosphorus and fluorine. Wow. FP3. नहीं. फॉस्फोरस का कितना नंबर है? 15. फॉस्फोरस का आंसर 15 है. FP PF3. 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 फ्लोरीन तो -1 ही है. लास्ट वन इज वेरी मिस्टीरियस. एलिमेंट 71. एलिमेंट 71 की आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके. सो जो भी है वो फ्लोरीन के साथ लुटेटियम है वो. लुटेटियम. XF2. इट कैन गिव अवे टू. तो एलिमेंट है कोई मेटल है. सॉरी 71. लैंथेनॉइड. लैंथेनॉइड. F ब्लॉक में आता है. ओके. इसका क्या होना चाहिए? लैंथेनॉइड फ्लोराइड्स. बट जो नॉर्मल आपने बोला दैट इज करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट. 2 electrons external and therefore the whatever it is XF2. XF2 ही हो गया ना आंसर. ठीक है. नेक्स्ट. तो वैलेंसी वाले क्वेश्चन है बेसिकली. 3.31. हाँ जी. सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव मुझे लग रहा है 5th होना चाहिए. ये एंथैल्पी ज्यादा है. नो चार्ट ही दे रखा है. हाँ जी. लीस्ट रिएक्टिव. सो यू शुड हैव आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है. तो व्हाट डज पॉजिटिव आयनाइजेशन एंथैल्पी रिप्रेजेंट? अच्छा डेल्टा है वो. सॉरी. इज इट डेल्टा और इज इट ईजी? क्या लिखा है वो? ये डेल्टा ईजी. अच्छा. वन इज गेन. ओके. सो बोथ आर गिवन. Okay. So the one which has very high gain enthalpy is good to go for receiving the electron. सर ए होना चाहिए सबसे लाइक 5th. ए का A. 5th होना चाहिए. द 5th एलिमेंट.
it is the least reactive, which means it's very difficult to remove electron from it. It is very difficult. Yes, and the second one is more. Yes, correct. Reactivity. I think you And were asking the this most reactivity. Okay. The most reactive. the most reactive Either is the second element. yes, least ionization enthalpy, least energy to be supplied. Okay. The most reactive non-metal. It should be a non-metal, It and means which means gain. it will the electron gain enthalpy will not be matlab, the in layman's language the tendency to gain electron is going to be very low, sorry, very high. The electron gain enthalpy should be very high, most should become पॉजिटिव most होना चाहिए ना, stable, should become पॉजिटिव more होनी stable. Yeah, पॉजिटिव होनी चाहिए negative. सिस्टम की तो एनर्जी अपन कम हो on. जाती है ना. हम्म, If the system gains energy, it becomes more stable by losing energy. So where is the okay. loss highest? The loss is highest at Third, it should be third. right? So which The means, most and it is a non-metal. So non-metal means it will accept the electron. So must, that means its electron gain, electron affinity is very high, and therefore the gain enthalpy is most negative. ठीक है. ठीक है? The least reactive non-metal. It should Again the be same. six. नहीं sixth नहीं. हाँ sixth ही होना चाहिए वैसे. Six. Uh, what is the difference between, अगर मैं बोल दूं least non-reactive, it is a least reactive non-metal. How do you know it is non-metal? Fifth, sorry, sixth. Gain enthalpy. Which enthalpy? ये electron gain enthalpy. Huh. But how do you know it's a non-metal? From the graph? क्योंकि ऊपर जो फ्लोरीन और क्लोरीन वगैरह होते हैं उनकी पीक पे जो आती है नेगेटिव वो काफ़ी होती है ना, वो नॉन मेटल्स होते हैं. फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन ग्रुप एक नॉन मेटेलिक ग्रुप है और उसकी इंथैल्पी पीक पे आती है. द इंथैल्पी ऑफ हेलोजेंस, electron gain enthalpy of halogens is most negative, so it shows you maxima, and therefore if you're referring to a non-metal with सॉरी इट शुड बी मेरे हिसाब से सर नोबल गैसेस को नॉन मेटल्स में इंक्लूड करेंगे कि नहीं. yes कर सकते हैं. कर सकते हैं ना, तो फिफ्थ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हीलियम है. Yes, I think so because one it is showing a positive, बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है और उसको इलेक्ट्रॉन निकालना भी बहुत मुश्किल है, उसमें इलेक्ट्रॉन डालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है. अग्रीड, अग्रीड. ठीक है. The नेक्स्ट. metal which can form stable binary halide of the formula mx2. ठीक है, which means it can lose two electrons, right? And the second ionization energy should also be very low comparatively. The first and second both should be easy to deal with. पहला इलेक्ट्रॉन छोड़ा उसने, फिर दूसरा भी छोड़ा क्योंकि वो वहाँ पे Na मतलब MgCl2 बना रहा है फॉर एग्जांपल, राइट? So first is very simple, the second becomes a bit harder, and it should have no tendency to me it appears like second, but you can still think halogen, ये भी halogen ही है, but it creates a, the second one also should be easy, right, comparatively. The second is potassium. How do you know? Graph table. Oh,
नहीं, मैंने देख पोटेशियम, रखा है, खोल रखा है टेबल। जो KCl बनता है जैसे हाँ पोटेशियम जी। आयोडाइड एंड ऑल दैट, ओके, और द मेटल विच कैन फॉर्म अ स्टेबल बाइनरी हलाइड, 3.328 फ्लोरीन। इट शुड बी स्टेबल, फ्लोरीन। पोटेशियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, एंड विच वन इज सेकंड के अलावा इफ वी सी, -295 वो है आयोडीन है। या एक तो हम अलग कर चुके हैं, सो उसमें सबसे पोटासियम हो सकता है एक तो। हाँ शुड बी, नहीं, पोटेशियम हो लिथियम भी नहीं सकता हो है। सकता। सेकंड के अलावा और किस में आयनाइजेशन एंथैल्पी स्मॉल, I mean, it's easy to remove the electron. I think first ionization energy is very small, but the second one is very large, which means it becomes very बहुत ज़्यादा गैप आ गया ΔH1 और ΔH2 में फर्स्ट में, और टू में इतना ज़्यादा गैप नहीं आया, इतना गैप आ गया इतने में, आई डोंट नो विच फर्स्ट और सेकंड में, इफ यू सी सिक्स्थ क्या हो सकता है, 6 का मैं नहीं पता। ओके लेट्स सी द, उसका क्या आंसर आया फिर, तो 6 ही मान लेते हैं। ई का, हाँ ई है कौन सा मेटल ग्राफ के हिसाब से, द आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर वेरी इजी राइट इन सिक्स्थ, फर्स्ट एंड सेकंड में ज़्यादा गैप नहीं है, क्योंकि जो सेकंड वाला है वो तो दिखा रहा है कि निकलना ही नहीं चाहिए, जबकि इट शुड बी इजी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, जैसे मैग्नीशियम है, शुड बी इजी टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, ये सिक्स्थ मैग्नीशियम तो नहीं है, आई गेस इट इज सर। इट इज, तो सिक्स्थ बेटर नहीं आंसर, हाँ जी। ई का, हाँ मैग्नीशियम ही लग रहा है, क्योंकि the second enthalpies also should be very low. How can be second enthalpy that large? ठीक है, I F sorry, एफ सर। predominantly it forms X, not L, MX2 नहीं बनाना है, MX बनाना है, ये पोटेशियम लग रहा है मुझे, हाँ जी, क्योंकि सही और है। बाकियों में अगर मैं देखूं, फोर्थ को देखूं अगर मैं, वैसे सर बट जो -6 थी वो लिथियम ही है। ओह, उसका सेकंड इज टू डिफिकल्ट, तो वो एक में स्टेबल हो जाता है, हाँ जी। एक में तो स्टेबल हो जाता है और सेकंड नहीं लूज करना चाहता, फिर सेकंड होना चाहिए। जबकि इफ यू कंपेयर दिस विद फिफ्थ, उसकी तो पहले ही बहुत हाई है, यस आई एम विद यू ऑन दैट, इट शुड बी सेकंड, ठीक है सर। पहली बहुत इजी है, उसके बाद बहुत डिफिकल्ट है, फर्स्ट में भी तो ऐसा ही है कुछ, फर्स्ट में भी आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, फर्स्ट वन, बट द सेकंड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, व्हाई नॉट फर्स्ट, तो फाइनल्स में सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। हाँ तो मतलब इम्पॉसिबल है ना हटाना, हम्म। तो लिथियम स्टेबल बन रहा है ना फिर फर्स्ट में, हाँ जी। चार्ट में विच इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट वन इज लिथियम। सेकंड, सेकंड पोटासियम। तो पोटेशियम तो मतलब इम्पॉसिबल बनाना तो फर्स्ट में ही है, आई कैन गो विद फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक है। टू आंसर्स, आई डोंट थिंक सो, वन ही होगा, आई थिंक चॉइसेस बिटवीन लिथियम एंड सेकंड, लिथियम एंड पोटेशियम, हेलोजन के साथ बनाना, लेकिन याद रखो हेलोजन के साथ लिथियम आयोडाइड वगैरह कुछ होता है, या पोटेशियम आयोडाइड appears to be better now because वो सुना हुआ है मैंने, it get does get created,
यस सर, वो होता है। देखना उसकी एनर्जी कितनी है पोटेशियम की। पोटासियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, नहीं नहीं, नॉट गेन, लॉस ही होगी उसकी केस में, मतलब आयनाइजेशन होगी उसकी जब, लॉस ऑफ एनर्जी। सर -48। नहीं नहीं, -48, वी विल फोकस ऑन हेलोजन फॉर दैट। एफिनिटी और गेन वैसे एंथैल्पी इज मोर फोर्थ ऑफ जो है ना, वो हेलोजन। आयोडीन है लाइक। नहीं, हम कौन से वाला? फोर्थ वाला। फोर तो रहने ही दो ना। फर्स्ट और सेकंड में से आई थिंक द पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड आर मोर फेमस। सेकंड, सेकंड पे ही जाते हैं फिर। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो रैशनल वाइज, एनीवे, यार ये तो देख के ही मालूम चलिए, तो हमें एड्रेसिंग से मालूम चल जाएगा। Assign the पीरियोडिक टेबल में तो position. आपको सब लिखा हुआ है। We can assign the position हाँ जी। by looking at the addressing scheme P NS2 NP4. So 1 2 uh, 13 आता है फिर, तो बीच में 3 9, 3 से 13 है, 3 to 12 है। P ब्लॉक के अंदर हम पहुंच गए हैं, तो वी स्टार्ट इन P ब्लॉक विथ 13, वेयर ये एल्यूमिनियम इज देयर। ये एल्यूमिनियम सर इज ग्रुप 16 है। NS2 NP4। ग्रुप, ग्रुप 16। ओके करेक्ट, एंड पीरियड इज 3, थर्ड एंड पीरियड, ठीक है। N-1 D2 NS2। फोर्थ पीरियड है, बट ये ट्रांजिशन में आ रहा है। तो फोर्थ पीरियड नहीं कहेंगे हम प्रिंसिपल इसको। क्वांटम नंबर तो वही हुआ ना, सीधा सीधा। पर ये वैसे फिफ्थ, नहीं सॉरी, ये एक्चुअली में फोर्थ फोर्थ ग्रुप में आ रहा है। हाँ ठीक है, वो डी से डिसाइड होता है ना उसका, तो जी। लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और थर्ड वाले N-2 F7। ओके, सर ये लैंथोनॉइड से। हम्म, इसके तो हमें ऊपर देखना होता है ना, वी हैव टू सी द जी। कॉन्फ़िगरेशन ऑन द ये टॉप, के आसपास आ रहा है, क्या कहते हैं। एड्रेसिंग। जी। ये ग्रुप 9 में आ रहा है। यू हैव काउंटेड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो तीन आउटर मोस्ट शेल में देखो, एक D1 है और हम्म, NS2 है। इसमें ओके, टू होने चाहिए। तो ग्रुप 9 एंड फॉर N = 6। अच्छा। यस सर, ग्रुप 9 ठीक है। लैंथोनॉइड्स। I think these are pretty straightforward ones. हाँ You जी। just count and do them. Okay, 3.29. Write the general outer electronic configuration of sp, d and f। जनरल ब्लॉक्स की जो टॉप पे लिखी होती है, जो नीचे लिखी हुई थी सारी की सारी, NS सर NS1 SP। NS2, हाँ ऐसे हाँ वाली जी। जो है। NS1 और NS2। फिर हाँ, मतलब यू ये शुड तो बी, लिखो, ये तो हो ही जाएगी। हाँ मतलब यू शुड मेमोराइज इट, कि डी ब्लॉक की क्या लिखोगे, वही लिखी है जो नीचे, यस सर। N-1, D 1 to 10, NS 0 to 2। हाँ जी। अग्री। तो ठीक यही लिखेगा, है। मतलब एफ ऐसे ब्लॉक की उसमें। क्या लिखोगे, वो भी लिखी हुई है एफ ब्लॉक की भी हाँ जी। क्वेश्चन में नीचे, यस सर। बस वहाँ पे आपको 0 to 14 लिखना है। यस सर। और N-1 D में आपको लिखना है 0 to 2। जस्ट बी केयरफुल, ये मेमोरी बेस्ड है सीधा सीधा। ओके, 3.28।
Increasing order of the reactivity of group one elements. ठीक है सर, वैसे in the case of group one elements from 5 lithium to electrons, 285 p block. हाँ जी, from lithium to cesium, as we go down the group, हाँ. the reactivity increases and the You were ionization doing enthalpy also decreases. no 3.27, right? नहीं, 3.28. 28. Okay, the decrease increasing. Okay. As वही we go down, reactivity को use the words like ionization ionization in enthalpy and enthalpy gain. and ionization enthalpy decreases And gain as we go enthalpy. down the group, and Yes. gain enthalpy is Also, ionization enthalpy, or and the elements tend to lose one electron yeah, to acquire the near noble gas yeah. configuration. क्लोरीन की हाईएस्ट होती है गेन एंथैल्पी, पीक पे होता है गेन ठीक है, एंथैल्पी के चार्ट में नेगेटिव, सबसे ज़्यादा नेगेटिव, सबसे स्टेबल, मतलब पीक पूरे चार्ट में सबसे ऊपर ही है क्लोरीन, विच इज़ एन एनॉमली ओवर फ्लोरीन. ठीक है, ओके. 3.27. पर इसने तो आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म्स में, the first answer you have to explain with the help of ionization energy, the second you have to explain with the help of gain enthalpy. The reactivity of halogen group has nothing to do with ionization, right? Because ionization मैं तो generally will ग्रुप वन result का in बता रहा था, है. मैं तो ग्रुप वन का बता रहा था ionization हाँ, enthalpy का. लेकिन आप जब हेलोजन पे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, अंडरस्टूड है. वहाँ पे गेन एंथैल्पी की टर्म्स में बात करोगे. ठीक है. नेक्स्ट. Identify the use the periodic table to answer the following questions. Identify an element with 5 electrons in the outer subshell. तो काफी सारे हैं. कौन से वाला कह रहे हो? 3.27. ओके, 285 मतलब, राइट? क्लोरीन भी है. 285. ग्रुप 17 है. Hmm. 5 electrons in the outer subshell. An Group element, any one. Anyone chlorine? हेलोजन है ये. नहीं सर, सब. आइडेंटिफाई 3.27 में हमें आइडेंटिफाई करना है हाँ. which element then identify an element with 5 electrons in the outer हाँ. subshell. What's your answer? फ्लोरीन. नहीं, क्लोरीन. क्लोरीन. हाँ, उसमें भी आउटर मोस्ट में 5 है, और तो पूरा ग्रुप अच्छा. 17 में है सर. ओके. 287 नहीं होता? आउटर सबशेल पूछा. सब शेल. ओके, सो यू आर कमिंग टू एसपीडीएफ. ठीक है, ठीक है. Identify an electron which is tend to lose 2 electrons. पूरा ग्रुप 2. Agreed. Alkyne. S2. Right. अगर एक बोलना हो तो मैं बेरिलियम बोल दूंगा. ठीक है. And to gain 2 electrons. ऑक्सीजन. हाँ जी, और पूरा ग्रुप 16 एक्चुअली. यस. नेक्स्ट. बहुत मेमोरी बेस्ड है तो. Identify the group having metal, non-metal, and liquid as well as gas at the room temperature. ये हमने पढ़ा था यार. ये वो वाला मरकरी वाला. ये मरकरी और गैस भी. ये पढ़ा था, मेरी मेमोरी से वाटर बढ़ है. गया. हाँ. अब अच्छा, मेटल, नॉन मेटल, लिक्विड एज वेल एज गैस. अच्छा ठीक है, मेटल
याद नहीं आ रहा बट पढ़ा था, हैविंग वी हैड मेटल, स्टडीड दिस। एक मेटल भी है। अच्छा है। विच वन इज इट? जस्ट सर्च। नहीं, ब्रोमीन। फिर ब्रोमीन। वो ओके, लिक्विड भी है, गैस। हेलोजन में ही आ गया आंसर। ओके। बट सर मेटल, हाँ, ब्रोमीन में सर इज कौन सा? नॉट अ, इट्स नहीं, यू टू फाइंड द पीरियड राइट। नहीं, ग्रुप। अच्छा, इट्स ग्रुप। ग्रुप। ग्रुप हाँ जी, नंबर क्या वो हुआ फिर? 17। ओके। ग्रुप 17। मेटल, थोड़ा वियर्ड है यार। अच्छा, आई डिडंट पता ग्रुप हैविंग अ मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज। हाँ, सारे चाहिए भाई। हाँ तो ग्रुप 17 ही होना चाहिए। क्लोरीन एक गैस होती है ना। लिक्विड कौन है इनमें से? लिक्विड सब ब्रोमीन है। ओके, और मेटल वर्ड कहाँ से आ गया फिर? सब मेटल आई गेस 80 है। कौन सा है? ग्रुप 17 है सर। नहीं नहीं, मेटल कौन है उसमें, ग्रुप 17 में? 80 और शायद हेलोजन में से? टूनेशियम वगैरह। ए 80 और 2s। अच्छा, ओके। 80 एलिमेंट। एस्टाटाइन। एस्टाटाइन। एस्टटाइन, यप। एस्टाटाइन। इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ओके। मेटल और नॉन। ओके। NaCl व्हाट्स अ क्वेश्चन? इज अ मेटल। ठीक है सर, सही, ग्रुप 17 सही है। ठीक है। ब्रोमीन भी है हमारे पास, नॉन मेटल भी, मेटल भी है। Would you expect first elimination enthalpy for two isotopes विच that क्वेश्चन? are sorry 3.2 sir. Major difference between metals and non-metals सर, ये तो easy है। ओके। डक्टाइल, ये तो आएगा भी नहीं, चलो आगे बढ़ो। नोबडी What इज would you आस्किंग। expect the first ionization enthalpies for two isotopes of the same element to be same or different? सर ये नहीं पता। क्यों? सेकेंड गेन इंथैल्पी क्या होती है? So you've already gained an electron, you become an ion, so next will be very high, पॉजिटिव होती है। नहीं मतलब आपने पहला isotopes, इलेक्ट्रॉन ले लिया, यू टुक isotopes द की सर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन राइट, you released energy, you accepted the first electron and you released energy, you become O minus। भाई कुछ हो गया? So O minus will not let another electron come in because it will repel it. So you will have to work very hard. That means you will have to provide energy to the system to be able to add another electron. So which means the second electron gain enthalpy will be very high. ठीक। So the answer is for the second electron, नहीं the सर, आइसोटोप्स की पूछिए, फॉर टू आइसोटोप्स। कहाँ लिखा है, कौन सा क्वेश्चन है? 3.25। आई एम रेफरिंग टू 3.21। अच्छा। अच्छा, isotopes of the same element. Okay. Enthalpies. Ionization enthalpy is dependent on what? Nuclear charge. हाँ जी। किसका न्यूक्लियर चार्ज जो है, कोई भी ले लो दो, ज़्यादा होगा? हाँ जी। आइसोटोप में नंबर ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप में क्या कॉमनैलिटी होती है?
सर एटॉमिक नंबर से सेम होते हैं पर मासेस अलग अलग होते हैं। हाँ जैसे ये यूरेनियम 235 ले लो। हाँ। सर उसमें भी लाइक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। पर न्यूक्लियस में तो काफी सारे लाइक न्यूक्लियस मास नहीं। समझे क्या तो बोल रहे? सेम जैसे नहीं होना आइसो चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पेयर पढ़ा था हमने, उसमें क्या रीजनिंग थी? सर उसमें लाइक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था ना। हाँ लेकिन नहीं सर फिर सेम नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सेम थे। हाँ जी इलेक्ट्रॉन So सेम थे। what do you want finally? You want that you should be able to uh, remove the electron easily. तो न्यूट्रॉन्स में आइसोटेप में क्या मतलब फर्क होता है प्रोटॉन का? एटॉमिक नंबर इज सेम ना, प्रोटॉन्स इज सेम। हाँ जी फिर if the charge is same then what is it, what are you expecting? सेम। Same. ठीक। न्यूक्लियर चार्जेस में सेम तो इनिशियल हाँ एंथैल्पी भी सेम हाँ रहेगी। या ठीक है। तो बाकी के में हाँ जी। अगला देख लो, जल्दी से देख लो कैसे हैं। 3.21 तो हमने पढ़ लिया। 3.21, जी। second enthalpy is positive always. The second gain Describe the enthalpy, theory associated with the radius of an atom uh, as it gains the an electron or as it loses। uh, uh, which is you have to explain the screening effect and everything. ठीक है सर। पूरा डिस्क्राइब नंबरों के लिए। ठीक है नेक्स्ट क्या है? सर फिर बाकी तो सर थ्योरेटिकली ठीक है। अब एक लेट्स ओपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखो उसमें क्या है। एग्जाम्पलर से तो सर पूछे भी नहीं। नहीं, नहीं सर एग्जाम्पलर से तो नहीं पूछेंगे। एमसीक्यू, नो नो। रीजनिंग असर्शन। नो सर सब एनसीईआरटी से आता है। अच्छा ठीक है, so let's have the test tomorrow then, but my suggestion is have a look at exemplar, ठीक है। helps, just the MCQs, nothing else. ओके। ठीक है, हाँ जी। and then I will send you the test actually, and then let's start doing the next chapter which is the bonding. ठीक है। ठीक है, चलो जी, thank you very much.